Hello students, how are you all? Today we'll start a new chapter that's name is Animal Kingdom. But before starting this chapter, first of all I would like to tell you some general things that we have learned in chapter 2nd, biological classification. In this chapter I was telling you that one scientist that's name was R.H. Whittaker. He proposed 5 kingdom classification system for living organisms and he classified living organisms into 5 kingdoms. These 5 kingdoms were Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Okay, in this chapter we will study about only kingdom animals. Okay, लेकिन थोड़ा बहुत आप जान लें सभी के बारे में. Monera kingdom includes prokaryotes organisms and there are some prokaryote organisms like bacteria. Bacteria are also divided into 2 groups, archibacteria and eubacteria. Blue, green algae or cyanobacteria, mycoplasm. Okay, these prokaryotes are made up of by prokaryotic cell. Prokaryotic term is made up by 2 words, pro plus karyon. Here pro means primitive and karyon means nucleus. For your kind information, you should know that prokaryotic cell does not consist well-developed nucleus and well-developed cell organelles like Golgi body, lysosome, endoplasmic reticulum, mitochondria, etc. Okay, only single unmembrane bound cell organelles occurs in prokaryotic cell, that is called ribosome or protein factory molecule. Okay, जैसे मैं बात करूंगा बेटा एक बैक्टीरियल सेल, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल ये किसका एग्जांपल है बेटा, एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का. ओके, इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल genetic material DNA occurs in a cytoplasm and this genetic material is not surrounded by the help of nuclear membrane because nucleus is absent in prokaryotic cells. Okay, this genetic material is known as nucleoid or genomic DNA. Okay, I have told you one unmembrane bound cell organelles occur, that is called ribosome. You should know that ribosome is responsible for protein synthesis in the cells. Okay, one thin like structure occurs in bacterial cell, that is called flagellum. By the help of flagellum, bacteria show locomotion. Okay, inner fold structure occurs in bacterial cells, that is called mesosome. Okay, mesosome consists of different kinds of enzymes that provides help for in a different chemical reactions. लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं बेटा, ठीक है, they do not consist well developed nucleus and well developed cell organelles. Okay, फिर आप जानें कि जो ये 4 kingdoms हैं, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Okay, they all consist eukaryotes, unicellular and multicellular. ठीक है, ये प्रेजेंट होता है बेटा इन 4 किंगडम्स के अंदर. ठीक है, you know very well about the eukaryotes. Okay, eukaryotes are made up by eukaryotic cell. Here eukaryotic term is also made up by 2 words, eu plus karyon. Here eu means well developed, okay, and karyon means nucleus. It means we can say that eukaryotic cell consists well developed nucleus and well developed cell organelles. Okay, and you should know that on the basis of the number of cell there are 2 kinds of living organisms,
यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. Okay, unicellular or single celled organisms are made up of by only single cell. Okay, and multicellular living organisms are made up of by many cells. Okay, जैसे एग्जांपल दूंगा आपको बेटा, in case of Protista kingdom. Okay, there is one irregular shaped aquatic organisms occurs that is called amoeba. Okay, amoeba is an example of unicellular eukaryotes. Okay, in case of fungi, okay, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अगर दैट इज कॉल्ड यीस्ट. ठीक है, कि जो यीस्ट होता है बेटा, इट इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बट इट इज मेड अप ऑफ बाय यूकैरियोटिक सेल. ओके, प्लेंटी की हम बात करेंगे बेटा. ठीक है, प्लेंटी किंगडम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स जो ग्रुप्स है प्लांट्स के बेटा, वो आते हैं. जैसे ब्रायोफाइट्स हो गया, ठीक है, टेरिडोफाइट्स हो गया, एल्गीज हो गया, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स. ओके, अब हम बात कर रहे हैं एनिमेलिया किंगडम की. ठीक है, Animalia kingdom consists multicellular eukaryotes. Okay. Now our topic is kingdom Animalia. Kingdom Animalia is also known as Metazoa. Okay, Kingdom Animalia divides into two groups. First, Parazoa, and second is Metazoa. Okay. Kingdom Animalia consists 11 phylums. Okay. In chapter first, I was telling you that there are 7 taxonomic categories like species, genus, family, order, class, phylum for animals, division for plants, and higher taxonomic category is किंगडम. ओके, तो ये बड़ा क्या है कि जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम कंसिस्ट 11 फाइलम्स. ओके, एंड फाइलम कंसिस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लास ऑफ एनिमल्स. ओके, एंड ऑन द इन डिफरेंट फाइलम्स देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स अकर्स. they differ from other animals on the basis of some fundamental features. okay, तो जो 11 फाइलम्स है बेटा, ये किसके अंदर आते हैं? एनिमल किंगडम के अंदर. ठीक है, और जो एनिमल किंगडम है इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, पैराजोआ एंड मेटाजोआ. ओके, अब पैराजोआ के अंदर बेटा वो एनिमल्स आते हैं दैट आर मल्टी सेलुलर. देयर बॉडी इज मेड अप बाय मेनी सेल्स but they do not have tissue. कि जो उनकी बॉडी बेटा इट इज मेड अप बाय मेनी सेल्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट दे हैव अनस्पेशलाइज्ड सेल्स. ओके, एंड दीज अनस्पेशलाइज्ड सेल्स do not combine with each other. Okay, and we can say that when cells are not combined with each other then they will not form tissues. ठीक है, जब सेल्स आपस में नहीं जुड़ती हैं तो क्या नहीं बनाएंगे बेटा? टिश्यू नहीं बनाती हैं. तो इन एनिमल्स के अंदर टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं होती है. ठीक है, और जो पैराजोआ बेटा, पैराजोआ इंक्लूड वन फाइलम दैट इज कॉल्ड पोरीफेरा. अब जो पोरीफेरा फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे बेटा, दे ऑल आर मल्टीसेलुलर बट दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू. ओके, एग्जांपल स्पंज, स्काइफा, स्पंजिला. ओके, ये जितने भी एनिमल्स हैं, sponge, scypha, spongilla, they all are aquatic animals. They occur in marine water and in fresh water. जैसे sponge and scypha, they occur in a marine water. Okay, and spongilla occurs in a fresh water. ठीक है, फिर हम बात करें बेटा यू मेटाजोआ की. ठीक है, ये दो पता है ना कि एनिमल किंगडम जो क्लासिफाइड है किसके अंदर, एक तो पैराजोआ के अंदर
और एक यू मेटाजोआ के अंदर, ठीक है। अब यू मेटाजोआ इंक्लूड्स 10 phylums of animals, and these 10 phylums are second है, फर्स्ट हो गया ना कोरिफेरा, सेकंड है निडेरिया और सीलेंट्रेट्स, नंबर थर्ड निडेरिया, नंबर फोर प्लेटी helminthes, number fifth Ascae helminthes, number six Annelida, number seven Arthropoda, number eight Mollusca, number nine Echinodermata, number 10 Hemichordata, और नंबर 11 Chordata. Okay, there are 11 phylums that occurs in kingdom Animalia. First Porifera, second Nidaria or Coelentrates, number third Nidaria, number fourth Platyhelminthes, number fifth Ascalmenthes, number six Annelida, number seventh Arthropoda, number eighth Mollusca, number 9 Echinodermata, number 10 Hemichordata and number 11 Chordata. ओके, अब इन सभी फाइलम्स के बारे में स्टडी करेंगे बाद में, ठीक है। ईच फाइलम कंसिस्ट different kinds of animals that differ from other animals, okay, on the basis of different characters, ठीक है। इनकी स्टडी करेंगे बाद में बेटा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है that is organization of animal body, and our subtopic is scheme of organization. Cell. You know very well that each and every living organism is made up of by cell. That's why we can say that cell is the structural, functional and biological unit of the life of living organisms. Okay, ठीक है, कि जो लाइफ स्टार्ट होती है बेटा, द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल सेल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमन बींग्स के अंदर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ह्यूमंस, मेल सेक्स सेल दैट इज कॉल्ड स्पर्म fuses with female sex cell that is called ovum, and after fusion of these both sex cell one single cell is formed that is called zygote. Okay, zygote or single complete egg cell. Okay, after formation of zygote one process takes place that is called cell division, and during cell division parental cell divides and form many cells. The group of many cells form tissue form organ form organ system, and organ system make a whole body.
ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रक्चर बनी हुई है वो किससे बनी है बेटा, एक सिंगल सेल से। ओके, दैट इज कॉल्ड जाइगोट और कंप्लीट एग सेल। ठीक है, फिर बात चल रही है बेटा अपनी कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, लाइक मसल सेल्स, nerve cells, epithelial cells, blood cells like RBC, red blood cells, white blood cells, blood platelets. Okay, there are different kinds of cells. ठीक है, अब क्या है बेटा कि जो ये सेल्स हैं, ठीक है, इन सेल्स का ग्रुप बनाता है टिश्यू। ठीक है, अब जब बहुत सारी सेल्स हैं तो मैंने क्या बोला कि जो एनिमल्स होते हैं बेटा, एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ओके, और जो एनिमल्स होते हैं ये भी एक मेन कैरेक्टर्स है एनिमल्स का। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। ओके, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर गेटिंग नरिशमेंट। ओके, और जो एनिमल्स होते हैं बेटा, सम एनिमल्स आर पैरासाइट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स और एक्सोपैरासाइट्स। ओके, पैरासाइट्स एंटर इनटू द होस्ट बॉडी फॉर गेटिंग नरिशमेंट। जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं बेटा, लिवर, फ्लूक, लीच, ठीक है, ये एग्जांपल किसके हैं बेटा, एंडोपैरासाइट्स के। ठीक है, ये अंदर एंटर होते हैं इनटू द होस्ट सेल्स फॉर गेटिंग नरिशमेंट। और कुछ जो एनिमल्स हैं दे आर एक्सोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, जैसे लाइस और टिक्स। टिक्स है ना, जो चींटड़े बोलते हैं जिनको एनिमल्स की स्किन के ऊपर लग जाते हैं। ठीक है, तो उनको नाम क्या दिया अपन ने, एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, कि वो सक करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें कि जो एनिमल्स हैं मल्टी सेलुलर होते हैं बिकॉज दे हैव मेनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड animals are heterotrophs and parasites because they depend on others for getting nourishment, or simply we can say that they show heterotrophic and parasitic mode of nutrition. ठीक है, तो अपनी अभी बात चल रही थी कि जो सेल्स होती हैं, there are different kinds of cells in a animal's body, muscle cells, nerve cells, epithelial cells, okay, and blood cells. Each and every cell, okay, show different kinds of functions in our body. And you know very well बेटा, सेल कंसिस्ट, सेल कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल है। इट कंसिस्ट वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स, जैसे गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इन सभी सेल ऑर्गेनल्स का भी अपना अलग अलग फंक्शन होता है इनटू दी सेल। इसमें बात कर रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, that provides help to produce energy in the form of ATP in our body. Okay, हम बात कर रहे हैं राइबोसोम की। राइबोसोम is also known as protein machinery molecule. Okay, ribosome provides help in protein synthesis process for the formation of proteins. ठीक है, कि हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और सेल्स के अंदर पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गन्स होते हैं they also show different kinds of functions in our body. Okay, फिर हम बात कर रहे हैं कि similar and dissimilar cells combinedly make tissue. Tissue. Okay, mainly you should know that there are 4 types of tissue. Epithelial tissue, that is made up by many epithelial cells. Okay, second, muscular tissue, that is made up by muscle cells. Number third, neural tissue or nervous tissue, that consists of many nerve cells or neurons. Number 4, connective tissue, and example of connective tissue bones, cartilage. ठीक है, और जो ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, दे आल्सो फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट आर फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स. ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं कि जो पूरा टिश्यूज होते हैं, ठीक है, टिश्यू मेक ऑर्गन्स. There are 2 types of organs, external organs and internal organs. Okay, external organs we can easily see,
like nose, ear, eyes, okay, and there are some internal organs that occurs inside the body like liver, kidney, okay. तो there are two types of organs that are produced by the help of tissues, ठीक है. जो tissues होते हैं वो क्या बनाते हैं बेटा, organs बनाते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, in case of humans, stomach. When we cut transection of stomach, okay, and when we observe this transection, then we find this type of structure. तो आप देख रहे हैं कि इस एक ऑर्गन के अंदर, स्टोमक के अंदर, ठीक है, ये तीनों टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यूज. तब तो बोला है ना कि जो टिश्यूज हैं, ठीक है, द ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक ऑर्गन्स, ठीक है. अब जो ऑर्गन्स है बेटा, ऑर्गन्स क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है. देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स in an animal's body like digestive system, respiratory system, reproductive system, circulatory system, okay. Organs joined and form organ system. जैसे एग्जाम्पल कर रहा हूं आपको मैं, इन केस ऑफ ह्यूमंस डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है. अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव system includes stomach, small intestine, ये सभी ऑर्गन्स हैं, सभी ऑर्गन्स हैं, तो मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है. लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, pancreas, etc. These all organs make organ system, that is called digestive system, okay. In case of respiratory system, trachea, windpipe, bronchus, bronchioles, lungs, combined they make respiratory system. In case of reproductive system, is a testis है बेटा, ठीक है, testis है, penis है, different kinds of accessory glands, ठीक है, वो मिलकर क्या बनाएंगे, reproductive system बनाएंगे, ठीक है. In case of female, ovary, fallopian tube, uterus, vagina, ठीक है, ये मिलकर क्या बना रही है, reproductive system, ठीक है. तो यानी कि जो different organs हैं, अलग-अलग organs, ठीक है, they join and form organ system, okay. And organ system make whole body of animal, ठीक है, कि जो organ system है बेटा, organ system make whole body of animals, okay. And body make species, ठीक है, कि जब बॉडी बन जाती है बेटा, ठीक है, तो हर एक एनिमल्स की बेटा एक पर्टिकुलर स्पीसीज होती है, ठीक है. जैसे वी आर ह्यूमंस, वी हैव सेपियंस नेम्ड स्पीसीज, ठीक है. वी आर होमो सेपियंस, होमो क्या अपने अंदर जीनस है और सेपियंस क्या अपना स्पीसीज है, ठीक है. लेकिन आपको स्टार्ट करते हैं कहां से, सेल से. तभी मैं बोला है कि ये सेल इज द यूनिट ऑफ द लाइफ, ओके. द ग्रुप ऑफ मेनी सेल्स मेक टिश्यू, टिश्यू मेक ऑर्गन, ऑर्गन मेक ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम मेक होल बॉडी. ये आपको जानना है बेटा, ठीक है. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके. This topic is depend on this topic, organization of animal body, okay. मेन जो था समझ चुके हैं बेटा,
कि लाइफ चाहे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टार्ट किससे होती है, सेल से होती है, ठीक है। सेल से क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं, सेल ही क्या बना रहे हैं, ऑर्गन्स, सॉरी टिश्यूज क्या बना रहे हैं, ऑर्गन्स बना रहे हैं, ऑर्गन्स क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, और जो ऑर्गन सिस्टम है वो क्या बनाता है, वो अवर होल बॉडी, ठीक है। एनिमल्स की होल बॉडी किससे बन रही है, ऑर्गन सिस्टम से, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, mainly there are 4 types of level of organization. First, cellular level. Second, tissue level. Fourth, organ level. और थर्ड है ऑर्गन लेवल, एंड फोर्थ ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। अब हम पहला जानते हैं बेटा अबाउट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। बेटा इन केस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यू नो वेरी वेल ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप बाय सेल, ठीक है। तो बेटा एक जो फाइलम बताया था आपको मैंने, पोरीफेरा, इस फाइलम के अंदर जो एनिमल्स आते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, एग्जांपल है स्पंज, ठीक है। स्पंज इज ए मल्टी सेलुलर एक्वाटिक एनिमल्स, बट जो इनकी सेल्स होते हैं बेटा, ठीक है, दीज सेल्स डू नॉट कंबाइन विद ईच अदर एंड दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू, ठीक है, फ्री टिश्यू नहीं बनाती हैं। जो सेल्स होते हैं स्पंज के अंदर वो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, ठीक है, दे डू नॉट कंबाइन विद ईच अदर एंड दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू। तो वो लेवल कौन सा होगा बॉडी का, सेलुलर लेवल होगा, ठीक है। ये बताना चाह रहा हूं आपको मैं, ठीक है, कि उन एनिमल्स के अंदर जो पूरी बॉडी बनी होती है, किससे बनी होती है, वो सेल से बनी होती है, ठीक है, टिश्यू उनके अंदर नहीं बनता है। फिर हम बात कर रहे हैं सेकंड टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल इन केस ऑफ सिलेंट्रेट्स और निडेरिया, निडेरिया फाइलम बेटा, इसके अंदर एक एक्वाटिक एनिमल्स आता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रा, ओके। हाइड्रा इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके। In case of Hydra, many specialized cells combine with each other and form tissue. तो हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रा होता है बेटा, ठीक है, हाइड्रा के अंदर सेल्स भी हैं, ठीक है, और जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो क्या बनाएगा, टिश्यू बनाता है, ठीक है। तो जो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेटा कैसा है, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। थर्ड है ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यू नो वेरी वेल, टिश्यू, टिश्यू मेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब जैसे एक फाइलम है अपने पास प्लेटी हेलमिन्थेस, इन दिस फाइलम फ्लैटवर्म्स occurs, okay, and organs are exhibited in platyhelminthes, ठीक है, कि जो organs हैं, ठीक है, वो बनते हैं बेटा platyhelminthes के अंदर, ठीक है। और किससे बनते हैं वो, द ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक्स ऑर्गन, ठीक है। और फोर्थ जो लेवल का वो क्या है,
organ system level from annelida to chordata, ठीक है। annelida है, arthropoda, mollusca, echinodermata, hemichordata, chordata, okay। in these phylums जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, दे हैव ऑर्गन सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इन दीज एनिमल्स ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। अब लेकिन क्या है बेटा कि इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स ऑर्गन सिस्टम हैव कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है, कि बहुत सारी मतलब एक कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर। अब जैसे प्लेटिहेल्मिन्थीज है बेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर भी ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, लेकिन वो क्या डिफरेंट है और एनिमल्स के ऑर्गन सिस्टम से, ठीक है। तो यानी कि ऑर्गन सिस्टम जो लेवल है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वो एनिमल्स के अंदर भी क्या कॉम्प्लेक्सिटी रखता है, ठीक है, वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। अब जैसे प्लेटिहेल्मिन्थीज है, एग्जांपल दे रहा हूं प्लेटिहेल्मिन्थीज का, ठीक है, कि उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल कैसा होगा, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल दूंगा आपको मैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इन केस ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थीज incomplete digestive system occurs, okay, but in other animals that belong to phylum Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Chordata, they have complete digestive system. In case of incomplete digestive system, only single opening occurs outside the body, okay. In case of platyhelminthes, and this single opening acts as a mouth and anus, ठीक है। तो ये सिंगल जो ओपनिंग है आउटसाइड द बॉडी, इट एक्ट्स एज ए माउथ एंड एनस, ठीक है। सम एनिमल्स consist double openings, ठीक है, double openings, one opening acts as a mouth and another opening acts as a anus, ठीक है। तो जो डबल ओपनिंग हो सकते हैं बेटा, उनके अंदर क्या होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक है। और जो प्लेटिहेल्मिन्थीज है उसका क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड circulatory system. In case of open circulatory system, ठीक है, जैसे आर्थ्रोपोडा है इनका, इनके अंदर क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट, ठीक है, एंड डायरेक्टली एंटर इनटू द बॉडी कैविटी, ठीक है। कि मतलब इससे क्या होता है बेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कि जो ब्लड होता है ना, ब्लड इज नॉट सर्कुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है। इनके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट, ओके, एंड सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट, ठीक है। वो सीधे ही मतलब उनको ब्लड मिल जाता है, सेल्स को और टिश्यूज को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम there is no blood vessels, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। लेकिन इन केस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको पता है कि जैसे हम ह्यूमंस की बात करूंगा, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। इन अवर बॉडी ब्लड इज सर्कुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, ओके। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट ब्लड वेसल्स, यू हैव लर्नड इन लोअर क्लासेस। Arteries circulate pure blood or augmented blood, ठीक है।
veins carry deoxygenated or impure blood. Capillaries are thin, small tube-like structures that make link or junction between artery and veins. ठीक है, तो ये जो ब्लड वेसल्स है, वेसल्स क्या होते हैं बेटा अपने ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, बताना था आपको मैंने कि इन केस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज सर्कुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स. जैसे आर्टरी है, आर्टरी कैरी प्योर ब्लड. ओके, वेन्स है, वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड. और जो कैपिलरीज है बेटा इट मेक जंक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स. ठीक है, तो बताया ना आपको मैंने कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, दे हैव कॉम्प्लेक्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल्स. ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को. अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन. देयर आर सम फंडामेंटल